Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Yes, today I am going to start the lecture number 14. Yes, this is last lecture of vector for your board exam. But अब नेक्स्ट से इसका फाउंडेशन स्टार्ट होगा. ओके गाइस, बट नेक्स्ट एक लेक्चर तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि बोर्ड वाले भी पढ़ें. नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP. ओके, yes, in this lecture I discussed the miscellaneous 10. okay, yes, one by one question discuss करते हैं. First question, write down a unit vector in xy plane. What is xy plane? Yes guys, what is xy plane? The xy plane is this called xy plane. Okay, and this is x axis, this is y axis. Okay guys, तो कभी एक्स वाई प्लेन आ जाए तो घबराना नहीं है. ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है मेकिंग विद 30 डिग्री, मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो 30, दिस इज 30 डिग्री. ओके, ऑलवेज एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सपोज यहाँ आके इसकी लेंथ 1 यूनिट हो गई. ओके, सो दिस इज P. अज्यूम x, y. ओके गाइस, नाउ फाइंड OP कैप. OP कैप फाइंड करना है. यस, हाउ टू कैलकुलेट? ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन x axis. So this is x and this is y. Okay, OP वेक्टर तो क्या है? xi k plus yj k. You know already. All the point can be written as in the form of vector form. Okay, so this is vector. x find करना है, y find करना है. Yes, in triangle OPM, cos theta, cos 30 is equal to x upon 1. Now x equal to cos 30, cos 30, value of cos 30 is √3/2. Okay, x आ गया. Similarly, in this triangle sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse, so y upon 1. So y is equal to sin 30 is equal to half. Yes. Now answer is OP cap. OP cap क्या होता है? OP अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, तो वेक्टर OP cap लिखो या OP वेक्टर लिखो. x √3/2 I cap plus 1/2 j cap. Okay guys, this is final answer. Okay, now next second questions. क्या कह रहा है second questions? Find the scalar component and vector component. Find the scalar component and magnitude of the vector joining the point. So simple. Let PQ vector, so x2 minus x1. PQ vector क्या है? Vector joining 2 point P, x1, y1, z1 and Q, x2, y2, z2. Now वेक्टर आ गया, पढ़ रखा है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है. y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Okay guys, now its magnitude. ये आंसर magnitude x2 minus x1 square y2 minus y1
square z2 minus z1 whole square. Okay, and its scalar component is x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. This is final answer. Okay guys, so simple. Next क्वेश्चन नंबर, अच्छा थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, ऑलरेडी डिस्कस्ड. आप देखना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जहाँ अपन ने 10.1 में देखा था. ओके, मतलब फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में होगा ये, है ना. नेक्स्ट थोड़ा स्पीड रखते हैं, पूरी मिसलेनियस जो कंप्लीट करनी है. यस गाइस, if A is equal to B plus C, solution 4, A is equal to B plus C, then it is true that not true, not true. Why? Since this expression is denoted, so the vectors are the sides of triangle, and magnitude of A, magnitude of B, magnitude of C. This expression is so the condition of collinearity of A, B and C. अब एक बात बताओ, जब ट्राइंगल की साइड होगी तो कोलिनियर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं. सो दिस इज रीजन, ये ट्रू नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 गाइस. Question number 5. Find the value of x for which is a unit vector. Let a is equal to x. मैंने कहा था जो भी वेक्टर होता है उसको कुछ assume किया करो. Given that a vector is a unit vector, so its magnitude is equal to 1. Yes guys, magnitude root x square 1 plus 1 plus 1, so x root 3. So x is equal to, yes guys, जब भी रूट मैथ में एक रूल बना लो, जब भी रूट हटाओ तो मॉड x लगाया करो. तो मॉड x इक्वल टू 1 बाई रूट 3, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3. ओके गाइस, आप स्क्वायरिंग भी कर सकते थे बोथ साइड. ये भी आंसर हो सकता है, प्लस वाला और माइनस वाला भी आंसर हो सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस. यस 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 यस, सो सिंपल. फाइंड a vector. Let R vector is to be find whose magnitude is 5 and is parallel. Resultant it means प्लस करना है. ओके, यही बोला था मैंने. सो रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ. सपोज C वेक्टर, so C is equal to A plus B. Now put the value of A and B vector. Yes, 2 plus I cap 3 I cap and get the C value 3 minus J cap minus plus 0 हो गया हो तो. यस, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके रख लो. वाई अभी समझाता हूँ.
root 10. Yes guys, we have to find r vector, and we know that vector is equal to magnitude and direction. Magnitude and direction. Okay, so r vector, magnitude of r vector is equal to 5 और डायरेक्शन क्या है, इसके पैरेलल, रिजल्टेंट के पैरेलल. अब जो रिजल्टेंट है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, वो डायरेक्शन की जगह चिपका दो, आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, तो रिजल्टेंट क्या था, सी. ओके, सी रिजल्टेंट है, तो सी कैप क्या हो जाएगा, यस, magnitude 5 and c cap. Put the c cap, 3 I cap. What is the c cap? C vector upon magnitude of c. Okay, so 5 3 I cap plus j cap plus 0 k cap upon root 10. अब रूट 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 अपॉन रूट 2 रूट 5. ओके गाइस, तो रूट 5 ऊपर चला गया, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है अपॉन रूट 2. ओके गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर. चेक कर लें और आंसर से. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, 3/2 रूट 10. ओके, रूट 10 ऊपर कैसा है, तो देखो रूट 10 बना लेते हैं अपन, कोई बात नहीं. यस गाइस, ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2, तो रूट 10 हो गए. एंड ये मैं ये कह रहा हूँ रूट 2 और रूट 2. वैसे तो ये आंसर है, तो ऊपर तो हो गया रूट 10 अपॉन 2. यस गाइस, now multiply 3 root 10 I cap plus root 10 by 2 j cap. This is your final answer. Okay, now next, move on the next question. Question number 7. A, B, C are given. Find a unit vector parallel to. यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो गाइस सो सिंपल, आप खुद करें, मैं तो हिंट दे रहा हूँ. लेट आर कैप फाइंड करना है, एंड वेयर आर वेक्टर इज 2a minus b plus 3c. पुट द वैल्यू. 2a पुट कर लेना, b पुट कर लेना, 3 पुट कर लेना, c वेक्टर पुट कर लेना, देन सिंप्लीफाई. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर. ओके गाइस, तो ये आप ट्राई करें. नेक्स्ट, यस गाइस, इसको डिस्कस करते हैं. सो द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलीनियर. कोलीनियर पॉइंट, कोलीनियर के बहुत सारे मेथड होते हैं, बेस्ट कौन सा था, ए बी वेक्टर. 2 वेक्टर फाइंड कर लो बस. ओके गाइस, पुट द वैल्यू. B vector and A vector. B vector is position vector of point B. So 5 I cap, 0 j cap, minus 2 k cap. A vector is I cap minus 2 j cap minus 8 k cap. All right. Now 5 minus 1, 4 plus 2j plus 6 k cap. This is AB vector. AC vector is C minus A. C minus A. Okay. Now put the value. C vector 11 I cap plus 3 j cap 7 k cap minus I cap
minus 2j cube minus 8k cube. 11 minus, just a minute, ये माइनस था ना, ये माइनस पे ब्रैकेट लगाओ. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. 11 minus 1 10 प्लस हो जाएगा 15. यस गाइस, रिश्ता ढूंढे AC वेक्टर एंड AB वेक्टर. AB वेक्टर कैन बी रिटन एज, अच्छा अपन ने AC वेक्टर फाइंड कर लिया. एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो. AB फाइंड करना चाहिए था ना, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन. क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड AC. तो AB एंड BC फाइंड करते हैं. कोई नहीं, BC फाइंड कर लो जल्दी से. BC डायरेक्ट कर लेंगे फिर. C माइनस B. नाउ C, पुट द वैल्यू. C वेक्टर 11ik plus 3jk plus 7kk minus 5ik 0jk minus 2kk. देखो अभी समझ में आ जाएगा. 6ik plus 3jk plus 9kk BC. ओके गाइस, अब इसमें रिश्ता ढूंढो. 2 कॉमन ले लो. 2ik plus jk plus 3kk. ओके, इसमें भी 2 कॉमन ले लो. 3 कॉमन आ रहा है. 2ik plus jk plus 3kk. नाउ 2ik फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इस वेक्टर की वैल्यू क्या आई, AB वेक्टर बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. BC वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू AB वेक्टर अपॉन 2. ओके, यस गाइस, BC वेक्टर इज इक्वल टू 3 by 2 AB वेक्टर. दिस इज A vector is equal to lambda B vector form can be generated. So A, B, C are collinear. Okay? Yes guys. और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन. Since BC vector इज इक्वल टू 3 by 2 AB वेक्टर, या फिर मैं इसको ऐसे कहूँ AB वेक्टर. इसको ऐसे क्यों कहा अभी समझ में आ जाएगा. अपन को ये पता लगाना है AC वेक्टर को B किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड एंडिंग टू C. तो AC बन गया और B दोनों में कॉमन आ गया, तो B बीच में पड़ रहा है. सो यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें. टेक मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 by 3 और BC. सो AB में वेक्टर नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड को ही शो कर रहा है. सो B डिवाइड AC इन दी 2 by 3 ratio. 2/3 ratio. Okay guys, so this is complete answer. Okay, PDF मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 guys, find the position vector of a point R which divide the line joining. तो देखो आज तो नहीं होगा ये मिसलेनियस, एक और डिस्कस होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आने वाले हैं इसमें. यस, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. पोजीशन वेक्टर ऑफ P
2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ q, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और r वेक्टर फाइंड करना है। और रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। एक क्वेश्चन। ओके, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। यस, इंटरनल डिवीजन। तो क्या फॉर्मूला हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू m1, बाद वाला पहले आता है, याद है गाइस, m1 क्यू वेक्टर माइनस m2 p वेक्टर अपॉन इंटरनल डिवीजन, तो प्लस आएगा m1 प्लस m2। नाउ पुट द वैल्यूज। ओके, अच्छा एक्सटर्नली, ओके गाइस, एक्सटर्नली, सो माइनस आएगा। ओके गाइस, यस, m1 1, q a माइनस 3b माइनस m2 2, p 2a प्लस b, ओके, upon 1 minus 2. Now simplify this. So simple, a minus 3b minus 4a minus 2b upon minus 1. Now minus 3a minus 5b upon minus 1 and 3a plus 5b. This is final r vector 3a plus 5b. ओके, बट इसमें एक क्वेश्चन और है, ऑल्सो फाइंड सो द पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। तो मिड सेगमेंट फाइंड करना है, तो RQ, यस गाइस, यहाँ देखो, P इज द मिड पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, P वेक्टर is equal to r plus q upon 2. Put the all values. Yes, r vector अभी भी आया था, कितना आया था, 5a, देख लेते हैं, just a minute guys, 3a plus 5b, 3a plus 5b and q vector is a minus 3b upon 2. Yes guys, 4a vector plus 2b vector upon 2. Simplify, 2a vector plus b vector. Yes, this is correct. This is p vector. 2a plus b is equal to 2a plus b. Put p. Okay guys, so p vector, so point P is the midpoint of line segment RQ. Okay guys, hence proof. Now next, this is last question. Yes guys, time कम पड़ गया तो नहीं कर पाएंगे अपन, 10 तक कर लेते हैं। Yes, 11 भी हो जाएगा। Find two adjacent side of a parallelogram की two adjacent side दे रखी है। Solution 10. Let a vector is equal to 2i cube minus 4j cube plus 5k cube. B vector is equal to I cube minus 2j cube minus 3. Find the unit vector parallel to its diagonal. Okay, also find its area. First of all, diagonal. तो diagonal क्या होता है? This is A, this is B. दो diagonal होते हैं, कोई सा भी find कर लो. Suppose this is R, A plus B. So R vector
a plus b, diagonal a. So put the value. 2 plus 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, minus 6j plus 2k cube. Okay, find the unit vector. So magnitude 9 plus 36 plus 4 is equal to 7. So r cap is equal to r vector upon magnitude of r. So answer is 3i cap minus 6j cap plus 2k cap upon 7. One answer. And one more answer. Its area. Sorry. Area. तो area क्या होगा? Yes guys, area. Area of parallelogram is equal to, याद है फॉर्मूला? A and B are sides, adjacent side. So A cross B only. Okay. So find A cross B. I cap, j cap, k cap, 2 minus 4, 5, 1 minus 2 minus 3. Yes guys. I cap सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 माइनस 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 प्लस माइनस जे के माइनस 6 माइनस 5 प्लस के माइनस 4 प्लस 4, ये तो 0. सो 22 आई के प्लस 11 जे के. एंड मैग्नीट्यूड पहले कॉमन ले लो. कॉमन क्या आ गया? 11. 2ik plus jk. Now its magnitude 1 2 1 4 plus 1 5. So ये तो 11 हो गया, 11 root 5. So area of parallelogram, area of parallelogram is equal to 11 root 5 square unit. ओके गाइस, 10 तक हो गया. 11. सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. वैसे तो क्वेश्चन 11.1 वाली एक्सरसाइज में है. ठीक है गाइस, अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको. ओके गाइस, तो टुडे योर होमवर्क, सारे क्वेश्चन करें प्लस अब एग्जाम्पल नंबर 28, 29 एंड 30. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये और डिस्कस करें. ओके गाइस, सो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद वाले क्वेश्चन भी होमवर्क में करने हैं आपको. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.